I remember some of you have done this project. तो आपके पास rocks होने चाहिए, पर जिसके पास नहीं है as of now, अभी के अभी, go बाहर जाके आओ, बाहर घर के बाहर देखो कहीं पत्थर होंगे. Okay, Mau got one. So at least collect 2 rocks, you know, 2 पत्थर collect करके लेके आओ. Okay, प्रेम को तो जल्दी से मिल भी गए. Great. सुमित find one more. ठीक है. रोहन, okay, रोहन को तो बड़े बड़े पत्थर मिल रहे हैं. Okay, great. सतप्रीत, I can't see your rocks. Okay, दिख गए. Great. ऐसे सभी लेकर आएंगे and everybody has to show the rocks that they have got. ठीक है, सबको दिखाना है. प्रशांत, अथर्व, साईनाथ, नीरव, you have joined just now. What you have to do is हमको घर के बाहर जाना है या घर के अंदर ही 2 पत्थर ढूंढकर we have to show. ठीक है, 2 पत्थर लेकर आना है. Okay, Ankita has got some stones. Okay. Did I found it? Okay, everybody has to show. Switch on your videos and then show 2, at least 2. ठीक है. Okay, Krishna has got 2. अथर्व को भी. Didi, I found 2. Okay, great. Mau has also got. Jaldi, we will not take much time. We'll come back in 1 minute. Quickly find 2 stones or rocks and then show it to us. ठीक है, सब लेकर. Didi, my planting tree. Aloe vera, tulsi. Wow, nice. I love plants, you know that, right? ठीक है. Yes, Neerav, find 2, and everybody has to switch on your videos. Okay, we'll do one thing. Didi, I have many plants. I'll come to everybody's home and see all your plants, and then I'll steal some plants from your houses. Okay. Good morning, Ayan. We all are collecting 2 stones. Shravani, Ayan, Anas, 2 पत्थर लेकर आना है. ठीक है? Quickly find 2 stones and bring it. Didi, what do we want to do now? बता रहे. I bring 2 stones. Very good. And quickly switch on your videos, guys. Videos on करोगे तभी मैं देख पाऊंगी if you have got stones or not. पत्थर मिल गए कि नहीं. बाहर आए तो बहुत ठंडी हो रहा है. ओहो, इतनी भी ठंड नहीं है बाबा. Okay, I see Piyush has got the stones. Riya, thank you for walking through. Riya के घर में कुछ ज़्यादा ही plants. Okay, great. फैजान, 2 पत्थर लेकर आना है. You have to find 2 stones and bring. ठीक है? We'll come. Our chapter. हाँ? Chapter is rocks. Yeah, About chapter is rocks, very obvious. Rocks and types of rocks we are going to study. But हम 2 पत्थरों से क्या करने वाले? If we have very nice quality of, we can. Didi, fire. उसे रगड़ के देख हम उसको रगड़ के आग ही जलाने वाले हैं. ठीक है भाई, हमारे रहने दो. हमारे पास matches भी हैं and we have lighters and everything now. We won't you know, generate fire. वैसे stone से fire generate हो सकती है. So that is one possibility. But we are not going to generate any fire. हम क्या करेंगे? We'll just take. आप अपना phone थोड़ा, you can keep your phone at a distance. थोड़े दूर रख सकते हो phone. And just take each rock in one hand. ठीक है? बड़ा है तो try करो if you can pick up. और उसको सिर्फ touch करके देखो अगर बहुत बड़ा है तो रख लो. And just touch दोनों हाथ से. दोनों हाथ. Just feel what you can feel. आप rock को touch करो, देखो कैसा है, अच्छे से देखो, उसको touch करके देखो कि कैसा feel हो रहा है ना? And what is the color of the rock? Whatever you can notice about it. I want to say something. Yes, Vilas, बोलो. नहीं, विलास नहीं था. विलास ही था ना? Sorry, whoever it was. Yes. हाँ जी, बोलो. Didi, that WhatsApp can message I see on 16 November. It is not real. Okay, yes, of course. And belated happy birthday, Vilas. Everybody wished you on the group. Didi? Yeah. Didi, I have joined now. I know, Ashwini. Okay. Didi, Yeah, Vilas. my birthday happens on 16 January. Yes, वही तो. Didi? You didn't reply.
अच्छा, दीदी anyway, ठीक है, we'll discuss all of this later. Those who joined late, let me just tell you, हमें 2 पत्थर लेकर आने हैं and we have to take 1 stone in each of our hand and see how does it feel to have the stones. We will look at the stones and we will touch and feel also कि क्या difference है and how you can feel. ठीक है? Now you have to describe those stones to me. I'm muting everybody. Now we will have a discussion on these stones. ठीक है? सबने देख लिया अच्छे से एंड सब फील भी कर सकते हैं. नाउ वी विल हैव अ क्विक डिस्कशन ऑन the stones. What we actually are going to do is start a new chapter, which is chapter number 7 in your geography textbooks. It is stones and types of stones. If you don't have stones, that's fine. If you couldn't find out, it's okay. I will discuss. जिसके पास है, they can show. ठीक है? Now today in the class, after we complete all the discussion, we will be successful if we are able to do 2 things. First thing is we know what are rocks. हमें पता है कि what exactly are rocks. And the second thing, we understand 3 types of rocks. ठीक है? और हम समझ पाते हैं what are the 3 types of rocks जो हमें मिलते हैं in nature and कैसे ये rocks form होते हैं. ठीक है? So if we are able to do these 2 things in the class today, we'll be successful. आज का learning successful होगा. ठीक है? So we will start with the first thing that we have to do, and that is what are exactly rocks. ठीक है? So अभी हमने पत्थर उठा के लाए and we saw them और हमने देखा भी. We see rocks a lot. हमें बहुत सारे rocks दिखते हैं आसपास. So what exactly are rocks? Anybody in the class who would like to explain कि पत्थर होता क्या है? What is a rock? Anybody? Okay. Yes, Rohan. दीदी Hmm. the stone is hard Hmm. Yes, and something very hard. Yes, exactly. Or that shape have no name, yes. Okay. and we hit anyone they will their head will दीदी हाँ, हम लग जाएगा ना, इसको गुनगुन आ जाएगा, बहुत बड़ा है. रोहन जो हमें everybody can see Rohan's video. Rohan is showing a very big stone sort of एक rock वो हमें दिखा रहा है. We all can see कि वो rock बहुत even नहीं है, बहुत shape बहुत अलग है और उसका जो texture है ऐसा नहीं है कि बहुत smooth है, बहुत rough edges है और बहुत rough है. We can see what Rohan is showing. पर everybody in the class has two stones at least. टेल मी कि क्या सभी स्टोन्स या सभी पत्थर रोहन के स्टोन जैसे ही हैं. आई सॉ अंकिता हैविंग सम स्टोन्स. अंकिता, कैन यू प्लीज डिस्क्राइब व्हाट टाइप्स ऑफ स्टोन्स यू हैव? कैन यू शो इट टू अस एंड टेल अस कि क्या वो स्टोन्स सिमिलर हैं जो रोहन स्टोन दिखा रहा है या पत्थर दिखा रहा है उससे? अंकिता. Ankita, can you switch on your video and show us your stones and also unmute and tell us कि how do they look? yes दीदी हाँ जी, बताओ. Everybody can see Ankita's video, okay? so didi the stones I got it from my fish tank. Yeah. I found them in the grounds where we play. So Ankita, your stones are same as what Rohan did make us view. जैसे अश्विनी भी हमको दिखा रही है. Vilas is No, also Didi. showing some stones. No, it's when we can use it for fire or to decorate our homes. So अंकिता के stones थोड़े ज़्यादा beautiful हैं, बहुत soft और अच्छा दिखने वाले हैं, and we can decorate our stones using those particular stones. ठीक है? तो ऐसे ही अगर हम अपने आसपास भी देखते हैं, we find a lot of rocks and different types of rocks. बहुत अलग-अलग दिखने वाले पत्थर होते हैं and सबके uses भी अलग-अलग हो सकते हैं. Now, what are some of the uses of rocks in your daily life? How do you use rocks? आपको कहाँ दिखता है कि rocks का use होता है in day to day life? Are these rocks useful? Where you can use these rocks is my next question. And for this question, let me ask
अथर्व you tell me, अथर्व you tell me कि where do you think these rocks are used? ये rocks कहाँ use होते हैं? What दीदी? ये पत्थर जो होते हैं कहाँ यूज होते हैं? आपके डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में आपने कभी यूज होते हुए देखा है पत्थर को? Yes, building colors. अंकिता ने दिखाए वो वाले क्या? कोई भी टाइप के रॉक्स आपको कहाँ यूज होते हुए दिखते हैं? ठीक है, तो अथर्व ने बोला कि बिल्डिंग के लिए यूज होते हैं। ठीक है, बिल्डिंग्स वगैरह बनती हैं, हाउसेस बनते हैं, तो उसमें कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होते हैं। और those who can remember some uses can type on the chat box also. ठीक है, प्रशांत, हरि विठल, धनश्री, what do you think कहाँ यूज होते हैं रॉक्स? ठीक है, मुझे अयान ने बोला रोड्स बनाने के लिए। अथर्व और सोचो। और मुझे सुमित ने बोला कि स्टैचू बनाने के लिए यूज होते हैं, डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज होते हैं, फिश टैंक में इलेक्ट्रिसिटी का खांब बनाने में, सीमेंट में यूज होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का क्या अथर्व? खांब। ओके, आई डोंट अंडरस्टैंड द वर्ड, बट हाँ मतलब दे कुड बी यूज देयर आल्सो। ठीक है, और रेलवे लाइंस पे यूज होते हैं, राइट। और अपने घर में सोचो, ठीक है, ये हम सब बाहर का सोच रहे हैं कि इतने बड़ी बड़ी जगह यूज होते हैं। अपने घर में आप जो चीजें यूज करते हो उनमें कहाँ पे स्टोन या पत्थर यूज होते हैं? ओके, वॉल्स बनाने में, पॉट्स बनाने में, ठीक है, ब्रिक्स बनाने में। ओके, और सोचो, मतलब और अपनी लाइफ में जाओ, आप जो चीजें यूज करते हो उसमें कहाँ होते हैं? फ्लोर्स, ओके, आपके घर में जो फ्लोर्स हैं वो हो सकते हैं। और वाटर कंटेनर्स, ओके। और सोचो अपने घर में कहाँ कहाँ यूज होते हैं? आप क्या चीजें यूज करते हो जो स्टोन या पत्थर की होती है? आप कुछ चीज ऐसी यूज करते हो और बहुत यूज करी है आपने, जो किसी एक टाइप के स्टोन की होती है। ओके, रेड फोर्ट बना है, ओके, टू ब्रेक डाउन समथिंग, हाँ, क्रश करने के लिए। अगर आपके पास ओखली हो आपके घर में ना, मम्मी लोग या फिर किचन में जो भी काम करता है वो यूज करता होगा कूटने के लिए, कुछ चीज छोटा छोटा करने के लिए भी वो ओखली जो होती है वो भी पत्थर की होती है। ओके, और कुछ? विलास, आई गिव यू चांस, वेट। हैमर, यस एग्जैक्टली, हैमर्स होते हैं, हो सकते हैं हैमर करने के लिए। थैंक यू नीरव। What about others? Pots बनाने के लिए। Okay, I see a lot of uses जो आप सभी ने list down किए हैं। Tiles, yes, floors में tiles use होते हैं। Okay, wood cutting के लिए भी at times, okay, some sharp stones भी use हो सकते हैं। Okay, I see a lot of it. I will still want you to think more कि आप ऐसी एक चीज यूज करते हो। Yes, सिलबट्टा, अयान, करेक्ट। आप ऐसी कोई एक चीज करते हो जहाँ पे एक स्टोन यूज होता है, ठीक है, और आपने वो चीज बहुत यूज करी है, मतलब जब से आप स्कूल में आए हो तब से आपने वो चीज बहुत यूज करी है, आपने खुद पर्सनली यूज करी है। थिंक ऑफ इट कि क्या हो सकता है, एंड आई एम स्टिल लुकिंग फॉर द आंसर। ठीक है, मुझे अभी भी आंसर चाहिए। बहुत ही कॉमन सी चीज है और आपने इसको बहुत यूज किया है। ठीक है, थिंक व्हाइल आई मूव फर्दर विथ माय नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और किसी को भी याद आता है तो जस्ट क्विकली टेल मी कि वो क्या है। विलास, यू हैड सम क्वेश्चन, पूछो क्या हुआ। दीदी, स्टोन का भी शेप रहता है क्या? स्टोन का क्या बेटे? स्टोन का शेप, ओके, गुड क्वेश्चन, या गुड क्वेश्चन विलास, वी विल डिस्कस अबाउट दैट आल्सो। ठीक है, ठीक है, अभी हमने देखा कि डेली यूज में, लाइफ में कहाँ स्टोन यूज करते हैं, एंड और हमने लिस्ट डाउन भी किए कि क्या क्या यूजेस होते हैं। गुड पॉइंट आयान। चौक, जो हम चौक यूज करते हैं ब्लैक बोर्ड में लिखने के लिए या फिर स्लेट पेंसिल में लिखने के लिए, वो भी एक टाइप का स्टोन होता है। ठीक है, वेरी क्लोज आयान, बट एक और चीज है सिमिलर टू चौक ऑल्सो जो आप यूज करते हो, थिंक ऑफ इट। ठीक है, नाउ टेल मी कि हमें ये जो रॉक्स हैं, ये जो हमने इतने सारे रॉक्स का यूज देखा, इतने जो रॉक्स हैं वो हमें मिलते कहाँ से हैं?
Where do you think these rocks comes from? कहाँ मिलते हैं हमको? Yes, blackboard is a quite close response, which is also right. Blackboard में जो board होता है वो भी किसी पत्थर से आता है. Okay, प्रशांत says कि rocks जो हैं वो space से कहीं से आते हैं. Okay, rocks space से आते हैं. Great. Yes, जमीन से आते हैं says Asatpreet. Okay. Mountains, very good Krishna also. Mountains, space, लावा से बनते हैं कुछ स्टोन जो वॉल्केनो से इरप्ट होता है लावा, उससे स्टोन्स बनते हैं. ओके, सॉइल, ठीक है. मिरर से अंकिता. ओके, और कोई जगह ग्राउंड से. यस महक. सैंड सेज कार्तिक. ओके. ठीक है. सी. ओके, यस, अमेजिंग. सो सी, अनस ने कहा सी से हमको स्टोन मिलता है. यस, स्टोन्स हम अगर बहुत जनरल देखें तो आसपास अगर हम देखें तो मेनली हमें बड़े बड़े स्टोन्स माउंटेन्स में दिखते हैं. हमें ऐसी जमीन पर बहुत सारे स्टोन्स मिलते हैं. स्पेस से भी जब एस्ट्रॉइड्स वगैरह आते हैं वी गेट स्टोन. और हाँ, और समुद्रों में भी स्टोन्स होते हैं. सो वी कैन सी वी कैन रिलेट टू कि हमें ये रॉक्स कहाँ कैसे मिलते होंगे, कहाँ से मिलते हैं. राइट नाउ, क्या ये रॉक्स नेचुरली ऐसे ही मिल जाते हैं हमको आसपास, या ये रॉक्स बनते हैं, या हाउ डू यू थिंक कि ये रॉक्स थे ऑलरेडी, थे हमेशा से अर्थ में, कि ओवर द टाइम ये रॉक्स बने, या नेचुरली ऐसी ही थी अर्थ? व्हाट डू यू थिंक, कहाँ से मिले हमें ये रॉक्स? ओके, कृष्णा से सम रॉक्स आर मेड, के कुछ बनते हैं. ओके, लावा से बनते हैं, सुमित ने कहा. ओके. ओके, वोल्केनिक इरप्शन से नेचुरली मिलते हैं, इज माउ इज सेइंग. ओके, कृष्णा से, कार्तिक आल्सो सेज कि हमें नेचर से मिलते हैं. ओके, आयान से सम आर नेचुरल. ठीक है. सो वैसे अगर हम रॉक्स की बात करें तो नेचुरली हमें बहुत रॉक्स मिलते हैं, पर ये जो रॉक्स हैं जो हमें ऐसे मिल जाते हैं, जो हम माउंटेन्स की बात कर रहे हैं या ऐसे जमीन की बात कर रहे हैं, दीज रॉक्स जो हैं वो काफी ओवर अ पीरियड ऑफ अ लॉट ऑफ टाइम, बहुत टाइम, बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स आई शुड से, पहले ये यहाँ पे अर्थ पे बने थे. ठीक है. दीज माउंटेन्स, जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है, वी नो ना, अर्थ के तीन अर्थ की लेयर्स होती हैं. देयर इज कोर, देयर इज मेंटल एंड देयर इज दिस क्रस्ट. क्रस्ट के ऊपर हम सब रहते हैं. राइट. सो ये जो क्रस्ट है अर्थ की, ये भी काफी टाइम में बनी थी. जब ये क्रस्ट बनी थी तब भी बहुत सारे वोल्केनिक इरप्शंस हुए थे, बहुत कुछ हुआ था. एंड जब ठंडी हुई अर्थ तो वो अर्थ का ऊपर वाला पार्ट बना. सो ये जो सारे रॉक्स हैं ये कहीं ना कहीं से फॉर्म हुए हैं, बट ओवर अ मिलियंस ऑफ ईयर्स, बहुत सारे टाइम में ये सब फॉर्म हुए हैं रॉक्स. सो डिफरेंट टाइप के रॉक्स हमें मिलते हैं, और ये अलग अलग तरीके से बने हैं, बट ये नेचुरली ही बने हैं. हम आर्टिफिशियली भी स्टोन्स बनाते हैं, बना सकते हैं. ठीक है, वील ऑल्सो डू एन एक्टिविटी जहां हम अपना खुद का स्टोन बनाएंगे. राइट. हम आर्टिफिशियली भी बना सकते हैं, और नेचुरली हमें जनरली ये फॉर्म रॉक्स मिलते हैं. ठीक है. Now do you think there are different types of rocks, and if yes, how can you say that? ठीक है, क्या आपको लगता है कि अलग अलग टाइप के रॉक्स हैं? हमने इतना सारा डिस्कशन कर लिया, प्रिटी ऑब्वियस. यस, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. हमने खुद जो रॉक्स इकट्ठे करे, शायद वो दोनों रॉक्स भी सेम नहीं होंगे, वो भी अलग अलग होंगे, बट यस, बेस्ड ऑन डिफरेंट प्रॉपर्टीज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. ठीक है. हम देख के भी बता सकते हैं. यूजेस जो हैं अलग अलग रॉक्स के, वो भी अलग अलग हैं, तो हम कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन यूजेस आल्सो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. सो इन दिस चैप्टर वी विल एक्सप्लोर कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स एंड हाउ डू यू क्लासिफाई देम. ठीक है. नाउ कैन यू नेम डिफरेंट रॉक्स दैट यू हैव सीन और यूज्ड? ठीक है, हमने अभी इतने सारे यूजेस देखे. ओके. नाउ कैन यू नेम सम रॉक्स? कुछ रॉक्स के नेम बता सकते हो आप? आपने यूजेस बताए, टाइल्स में लगते हैं, आपने बताया कि रोड्स बनती हैं और रेलवे लाइंस में डलते हैं. कैन यू नेम सम ऑफ द रॉक्स? कुछ रॉक्स का नाम बता सकते हो क्या आप लोग? यस मीनाक्षी, यू टेल मी. सॉरी, यस मीनाक्षी.
Didi, I am Rohan. Yes, I know you. Didi, we make बताओ. chapati and roti on that. अच्छा, वो जो आप बोल रहे हो जो बेसिकली पटा होता है जिसके ऊपर आप रोल करते हो चपाती. हाँ, ओके, दैट इज अ यूज एंड दैट इज करेक्ट. चकला भी बोलते हैं बहुत सारे लोग. बट आई वांट टू नो द नेम्स ऑफ सम रॉक्स. रॉक्स के नेम्स मुझे पता करना है. Didi made हाँ बताओ. ओके, यू कैन अनम्यूट एंड स्पीक. brick and iron stone. एंड आयरन. Stone. आयरन स्टोन. ओके. और Mhm. what about others? Any other stone जो बहुत commonly use होता है? Okay, Krishna says diamond and sandstone. ठीक है, diamond. Okay. Coal, magnet, slate. Correct. Coal, yes, exactly. Basalt. Okay. Crystals. Okay. Gold. Okay. Gold isn't a stone or rock actually. Ores होते हैं. I will tell you about them. So gold directly, basically वो एक metal है. Okay, limestone, correct. Diamond. Okay, so we generally know ये सारे different types के rocks हैं और या फिर rocks से मिलते हैं हमें. ठीक है. So we have quite some knowledge about rocks and generally हमने देखे, हमें use पता है and we know commonly occurring rocks also. ठीक है, great. Now what I was looking for was one a response from you all that हमने एक type का rock use करते हैं pencils में भी, right? Pencil जो हम लिखते हैं ना, so one type of rock is used there. Who would tell me कौन सा है वो? What is used in pencil? Pencil से लिख कैसे पाते हैं? Okay, Neerab says lead. Okay, Ayan says graphite. Okay, great. No, it is not cool. If you are answering this, Karthik, graphite use होता है pencil में. Pencil जो आप लिखते हो, जो black color का जिससे लिखा जाता है, that is basically graphite. It is also a type of rock. ठीक है? Okay, great. So हमें काफी कुछ पता है. Now what I want is we'll quickly note this down. We will note what basically are rocks and what are the how do we classify rocks and all. So we'll just make a note. ये जो आपको दिख रहा है on the screen, we will note this down in the notebooks. ठीक है? And one of you, let me just invite Mau. Can you read it for us? Can you read this? Yes, Didi. Yeah. Rocks are found on land surface and also below it. Rock are mix. What is this, Didi? Mixture. Mixture of different materials formed by natural processes in the lithosphere. Yeah. What is this, Didi? पढ़ो उसको. Try to read it. Break down क्या करो? जब बड़ा word read करते नहीं बने, break it down into small words. Properly. Properties. Properties of rock defined on the what is this, Didi? वही मैंने बोला ना. Break down the word and then read it. Constituent. Constituent materials and the Minerals. minerals and the proportions as well as on the formation process. Silk, aluminium, magnesium and iron are the major rock forming minerals. There are other minerals too in different rocks. Okay, thank you, Mau. So what exactly they want to say here is कि जो rocks होते हैं वो generally हमको land के ऊपर generally जो हमें दिखते हैं land के ऊपर मिलते हैं और land के नीचे भी there are a lot of rocks. ठीक है, जो हमें directly दिखे ना. Rohan, I'll take your question next.
ठीक है। नाउ व्हाट एग्जैक्टली आर रॉक्स? अगर हमें रॉक्स को डिफाइन करना है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? रॉक्स आर जनरली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स formed by natural process in the lithosphere. लिथोस्फीयर क्या है? जो अर्थ का सरफेस है, जहां हम रहते हैं, जो लैंड है जहां हम रहते हैं, दैट इज लिथोस्फीयर. जो लैंड वाला एरिया है, दैट इज लिथोस्फीयर. सो रॉक्स क्या होते हैं? दीज आर जनरली मिक्सचर, मिक्स होते हैं. मिक्सचर हमें पता है ना, बहुत सारी चीजों को मिला दो. सो मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. ठीक है, किस चीज से बने होते हैं रॉक्स? जनरली मिनरल्स से बने होते हैं, that are formed by natural process in the lithosphere. ठीक है. So there is some natural phenomena, कुछ natural phenomena के चलते हुए ये rocks जो हैं वो बनते हैं over a period of time. तो rocks generally क्या होते हैं? अगर हमको थोड़े से वर्ड्स में डिफाइन करना है तो दे आर जनरली मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मिनरल्स. ठीक है, बहुत सारे मिनरल से बने हुए होते हैं. नाउ अलग अलग रॉक्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना. हर रॉक की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं. कोई दिखने में एकदम स्मूथ होता है, कुछ रफ होता है, किसी का कलर डिफरेंट होता है. हर रॉक की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं. ठीक है. नाउ ये प्रॉपर्टीज किस चीज पे डिपेंड करती हैं? दे डिपेंड ऑन दी कॉन्स्टिट्यूएंट मिनरल्स एंड देयर प्रोपोर्शन. मतलब कौन से मिनरल से वो रॉक बना है और कितने क्वांटिटी में वो मिनरल है. ठीक है. अगर कोई पर्टिकुलर मिनरल ज्यादा क्वांटिटी में है, बाकी मिनरल कम क्वांटिटी में है, तो उस रॉक में उस पर्टिकुलर मिनरल की ज्यादा प्रॉपर्टीज आएंगी. राइट. नाउ सिलिका, जो हम सैंड बोलते हैं, सो सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन, ये जो 4 मिनरल्स होते हैं, ये मेजरली ऑलमोस्ट सभी रॉक्स इन्हीं मिनरल से फॉर्म्ड होते हैं. बाकी मिनरल्स भी होते हैं, वो अलग अलग क्वांटिटीज में होते हैं, पर मेनली ये 4 मिनरल्स होते हैं: सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन. ठीक है. नाउ डोंट कंफ्यूज रॉक्स विथ मिनरल्स. ठीक है, या मेटल्स. ठीक है, मिनरल्स आर डिफरेंट, रॉक्स आर डिफरेंट. रॉक्स रॉ फॉर्म में होता है, मिनरल्स आपको रॉक से मिल सकते हैं. सो व्हेन यू से कॉपर और व्हेन somebody कोटेड गोल्ड या फिर डायमंड आल्सो, इन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, ये सब हमको रॉक से मिलता है. ठीक है. रॉक इज अ टाइप ऑफ, सॉरी, डायमंड इज अ टाइप ऑफ स्टोन, इट इज नॉट अ मिनरल और अ मेटल, पर वो भी हमको स्टोन से, रॉक से मिलता है. राइट. बेसिकली वो एक बाय प्रोडक्ट होता है. रॉक जो जनरली आपने अभी बहुत सारे लोगों ने दिखाया, बाहर पत्थर बड़े बड़े होते हैं, वो रॉक्स होते हैं. वो रॉक अलग अलग मिनरल से बनते हैं. मेन कौन से मिनरल्स होते हैं? सिलिका, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एंड आयरन. इनसे जनरली सारे रॉक्स बने हुए होते हैं. बाकी मिनरल्स भी होते हैं अलग अलग क्वांटिटी में. ठीक है. सो नाउ टेल मी, हाउ डू यू अंडरस्टैंड कि रॉक क्या होता है, और अलग अलग रॉक अलग अलग क्यों दिखते हैं या क्यों अलग अलग होते हैं? Do you understand this? Yes or no? Till then I will take Rohan's question also. Yes, Rohan. You had a question. Didi, हाँ, बोलो. some stone like this also. Didi, they say साल का नाम जनवरी स्टोन भी है. January stone भी है? Okay, I'm not aware of that. जनवरी लेके दिसंबर तक. अच्छा, हर मंथ के अपने स्टोन होते हैं. जेम स्टोन की बात कर रहे हो क्या आप? वो हाँ. नीलम और अलग अलग वो पत्थर जो पहनते हैं लोग अंगूठियों में, उनकी बात हाँ. कर रहे हो? हाँ, हाँ, ये वो जेम स्टोन कहलाते हैं. ठीक है. जेम स्टोन्स प्रेशियस स्टोन्स होते हैं जो महंगे मिलते हैं. राइट. नेचुरल फॉर्म में ऐसे ही कैसे नहीं मिलते, उनको तराशा जाता है, शेप्स में डाला जाता है, जैसे डायमंड का होता है वैसे ही जेम स्टोन्स होते हैं, वो भी हमें पत्थरों से मिलते हैं. राइट. एक्सीलेंट पॉइंट रोहन, थैंक यू सो मच फॉर ब्रिंगिंग दिस. ठीक है. सो अभी हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे, बट उसके पहले जस्ट सी दीज 4 इमेजेस. ठीक है. आपने जो पत्थर उठाए होंगे ना, इन्हीं में से कोई किसी के जैसे दिखते होंगे. राइट. दीज आर 4 डिफरेंट इमेजेस ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स. ठीक है. नाउ एनी डिफरेंस दैट यू कैन कोट, अश्विनी, ये चारों इमेजेस में क्या डिफरेंट आपको नजर आ रहा है, या ये सब एक ही चीज की फोटो है? व्हाट डू यू थिंक, अश्विनी? अश्विनी? दीदी, ये जो सबसे फर्स्ट वाला है ना, that is bigger stone. It is used for the mountains, and this
ये जो स्टोन है वो घर के लिए यूज करते हैं, पर इसमें डिफरेंस है। हाँ, क्या आप देख रहे हो कि पहला वाला बहुत बड़ा स्टोन है, माउंटेन्स वगैरह पे मिलता है, ठीक है, बाकी फिर घर वगैरह बनाने के लिए होता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू से। ओके, ग्रेट, एक्सीलेंट पॉइंट। नीरव, व्हाट दीदी दिस अदर थिंग यू कैन सी हियर? नीरव, आप इन चारों इमेजेस को देख के क्या बोल सकते हो? दीदी हाँ अश्विनी बोलो। दीदी दिस स्टोन लास्ट लास्ट वाला जो है ना, दैट इज ओशियन में मिलते हैं ये स्टोन्स, राइट राइट, एंड दे आर यूज फॉर मेकिंग द डाइनिंग टेबल रहते हैं ना वाटर वाले, उसमें भी डालते हैं और शो के लिए भी रखते हैं वो। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच अश्विनी। ये वाले जो होते हैं ये हमको ओशन में जनरली मिलते हैं, ठीक है। ओके, माउ सेज कि जो थर्ड और फोर्थ वाले इमेज है वो उसने जो स्टोन्स उठाए थे उसके जैसे हैं, ठीक है। आपने जो पत्थर उठाए थे ना, आप उनको क्लासिफाई कर सकते हो। एनीबडी एल्स हैज टू ऐड कि कुछ उनको नजर आ रहा है इन स्टोन्स में? कार्तिक, Yes, the any difference, any other difference, anything else that you can see in these four this images? the third one, it is eating stone, eating stone. खाने वाला पत्थर? हाँ, yes, होता है। ओके, आई एम नॉट श्योर, थैंक यू सो मच फॉर टेलिंग मी। मुझे आइडिया नहीं है कुछ खाने के बारे में, बट यस, ओके, इट कैन बी आल्सो स्टोन। ओके, माउ वांट्स टू ऐड समथिंग। थैंक यू कार्तिक फॉर टेलिंग अस। यस माउ। दीदी वो जो फोर्थ वन का जो पत्थर है ना, वो वाला एक्वेरियम में भी रखते हैं। वो मार्बल्स है, मार्बल्स। वो वाला एक्वेरियम में भी रखते हैं। अच्छा, डू यू नो, अच्छा लेट मी जस्ट टेल यू कि ये जो चार इमेजेस हैं इनको चार अलग अलग नामों से जाना जाता है। कैन यू टेल मी द नेम्स ऑफ ऑल दीज फोर डिफरेंट थिंग्स? कैन यू टेल मी द नेम्स? Okay, I see a lot of hand raised, पर वो पहले से raised थे. So I'm lowering your hands. Anybody who wants to tell me the names of these four different images that you see? I am lowering your hands. अभी मत raise करो, ठीक है? I will ask you to raise your hand, then only raise, ठीक है? Okay. So now you see these four images. We know कि सब चारों different है. Now tell me the names of these four different images, if you can. Anybody who knows the name can raise the hand. Okay. Yes, Krishna, tell me. I can name the third one and the fourth. Third one, I think it is basalt, Okay. and the fourth one is gems. Okay. Fourth one you think are gems and basalt. Okay. ठीक है, कृष्णा went too into deep के पत्थरों के नाम क्या हैं? Let me just tell you very basic difference. बहुत interchangeably हम ये नाम यूज करते हैं, पर ये चारों चीजें बेस्ड ऑन साइज अलग अलग नामों से जानी जाती है, ठीक है, बेस्ड ऑन दी साइज। अगर बहुत बड़ा सिंगल पत्थर है, बहुत बड़ा, जनरली माउंटेन्स में या ऐसे एरियाज में आपको मिलेगा, तो उसको हम बोल्डर कहते हैं, ठीक है, बोल्डर। रॉक जो होता है वो काफी बड़ा होता है पर बोल्डर से छोटा होता है, ठीक है, तो रॉक का साइज जो होगा वो बोल्डर से छोटा होगा। नाउ स्टोन्स आर नॉर्मल पत्थर जो हमको ऐसे ही बाहर मिल जाते हैं, इनकी साइज ज्यादा बड़ी नहीं होती, बहुत छोटे भी नहीं होते, बड़ी भी नहीं होती है, वो स्टोन्स होते हैं जो नॉर्मल पत्थर हमको दिखते हैं। और ये जो आपको फोर्थ वाले दिख रहे हैं, जैसे अश्विनी कहा था कि ये ओशन के पास मिलते हैं, ये पेबल्स कहलाते हैं, ठीक है, इनको हम पेबल्स बोलते हैं। पेबल्स जनरली स्मूथ होते हैं, और ये स्मूथ हो जाते हैं क्योंकि पानी, काफी इनके ऊपर पानी आता है समुद्र का, और सैंड जो होती है इनके एक्शन की वजह से ये जो है वो थोड़े स्मूथ हो जाते हैं, इनकी एजेस रफ नहीं होती और ये बहुत ज्यादा रफ नहीं होते, इसलिए हम इसको डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज करते हैं, ये पेबल्स कहलाते हैं, ठीक है ना। जैसे कृष्णा ने कहा जेम स्टोन्स, जो वो बता रहा था, जेम स्टोन्स में कुछ और अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, वो थोड़े शाइनी होते हैं, वो अच्छे सुंदर से दिखने वाले होते हैं। जेम स्टोन्स आर अ बिट डिफरेंट फ्रॉम दीज, ठीक है। नाउ फर्स्ट जस्ट क्विकली अंडरस्टैंड कि बोल्डर, रॉक, स्टोन्स, पेबल्स, ये चार वोकैबुलरी हैं, हम जनरली बहुत इंटरचेंजेबली यूज करते हैं। हम रॉक को भी पत्थर बोलते हैं, हम स्टोन को भी पत्थर बोलते हैं, और हम बोल्डर को भी पत्थर बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। हम सबको, अगर हम ऐसे पॉइंट करना पड़ेगा तो हम सबको ही रॉक बोलेंगे, बट स्लाइट डिफरेंस होता है साइज के बेसिस पे। तो बोल्डर बहुत बड़ा रॉक होता है,
रॉक जो है वो उससे थोड़ा छोटे छोटे साइज का होगा, स्टोन्स और छोटे होते हैं, एंड देन देयर आर पेबल्स, ठीक है। नाउ रॉक जो होता है वो बेसिकली स्टोन से ही बनते हैं, मल्टीपल स्टोन से मिला के रॉक बनता है, ठीक है। सो सब एक सा ही है बट फिर भी थोड़ा डिफरेंट है। सो जस्ट बाय द इमेजेस अंडरस्टैंड कि साइज के बेसिस पे हम अलग अलग नाम से बुलाते हैं, ठीक है। ओके, we move forward with this quick information. I will quickly read this out. Listen to it very carefully. ठीक है? The interior of the earth has very high temperature. ठीक है, ये हमको सबको पता है कि अर्थ के अंदर आप नीचे जाते जाओगे, अगर हम नीचे की तरफ जाएंगे तो इंटीरियर जो है अर्थ का, वहां बहुत ज्यादा टेम्परेचर है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। तो उसकी वजह से जो मटेरियल्स हैं उस पार्ट में वो मोल्टन स्टेट में है, वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, वहां सॉलिड स्टेट में नहीं होता क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। नाउ समटाइम्स दिस मटेरियल गेट रिलीज्ड टू द फिशर्स इन द क्रस्ट, ठीक है। तो क्रस्ट में थोड़े से जो क्रैक्स वगैरह होते हैं उससे कभी कभी ये मटेरियल्स बाहर आ जाता है। नाउ जनरली ये जो फिशर्स होते हैं वो वॉल्केनो के फॉर्म में भी होते हैं। तो जब भी वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं तो लावा जो है, जो मोल्टन स्टेट में अंदर है, जो मैग्मा कहलाता है, ऐसे वो बाहर आता है वॉल्केनो से, उसको जब वो बाहर आता है तो लावा कहते हैं, ठीक है। जब वॉल्केनिक इरप्शन होता है तो सिर्फ लावा नहीं आता, साथ में गैसेस आती है, डस्ट, ऐश, ये सब कुछ आता है। और वॉल्केनिक इरप्शंस में ये जो अंदर वाला मोल्टन स्टेट में चीज है वो बाहर आ जाता है, ठीक है। आई एम श्योर वॉल्केनिक इरप्शंस के बारे में आप सभी को पता होगा। सो अंदर जो मटेरियल है दैट इज मैग्मा, वॉल्केनिक इरप्शन से जब बाहर आता है ये मैग्मा तो उसको हम लावा कहते हैं, ठीक है। सो दिस इज जनरल क्विक फैक्ट दैट आई वांटेड टू टेल यू ऑल. This was all about rocks. So now if we say where are we know what rocks are. If you understood what rocks are, give me a sign, ठीक है। 0 to 5 will do. 0 मतलब नहीं समझ आया क्या रॉक्स होते हैं, 3 मतलब मुझे थोड़ा बहुत समझ आया, एंड 5 मतलब मुझे पता चलता है कि व्हाट आर रॉक्स, कैसे बनते हैं, एंड अलग अलग रॉक्स क्या होते हैं। ओके, थैंक यू साक्षी, थैंक यू कृष्णा। ओके, साक्षी इज क्लियर. Tumblestone of 4. Okay, okay, I see most of you at 4 or 5. Great, some of you are at a 3. Okay, no problem. Great, ठीक है। अभी हमने डिस्कस किया कि रॉक्स क्या होते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट आर द 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स, ठीक है, और वो रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं। दिस इज व्हाट वी विल डिस्कस नेक्स्ट. Now before we discuss next, we'll take a quick break, छोटा सा break we will take. We'll drink some water and we'll all clap, ठीक है। We will all clap बहुत तेज, ठीक है। Unmute yourself and clap, ठीक है। Unmute yourself and we'll all clap. बहुत तेज आवाज आनी चाहिए मुझे तालियों की, सबको। हर्षद, अनस, प्रशांत, जोया, महक, स्नेहा, we'll all clap. आदर्श, How is looking so cute with her hair. I'll also clap. तो clap करने से ना नींद उड़ जाती है. Okay, now drink some water also. थोड़ा सा पानी. We'll all drink some water and we'll all stretch a bit. बहुत देर से सुन रहे हैं, मैं तो बोल भी रही हूँ. प्रशांत को मेरी आवाज नहीं आ रही है. प्रशांत, we'll all clap and we will drink some water. We are taking a break. Okay. Oh, very good. 5, 4, 3, 2, 1. We'll all come back on the screen. ठीक है, सब वापस से आ जाएंगे. Thank you so much Adarsh for doing this for us. Great. Okay, so are we all back? If we are back, give me some reaction. Give me some reaction. Thank you Neera. Thank you Sakshi. Give me your favorite reaction. Like मुझे ना ये party popper काफी पसंद है. Okay, great. Sufyan, Ankita, Riya, Mao, Shravani, Anas, are we back? Hari Vittal, Mohammed, Kaveri, Sainath. Okay, great. Okay, great. Mao, I'll come to your home. You make a burger and I'll eat. I like burgers. Okay, great guys. Focus back on the class. अभी हम पढ़ेंगे 3 types of stones. ठीक है, we are going to study 3 types of stones. कौन से basic types of stones होते हैं और वो कैसे बनते हैं. This is what we will discuss further.
ठीक है, let me yeah, okay, great. So based on the basis of the formation process, ठीक है, किस तरीके से वो रॉक बन रहा है, on the basis of formation process there are 3 types of rocks, ठीक है, कैसे बन रहे हैं उसके बेसिस पे है, ठीक है. So what are these 3 types of rocks? Igneous or primary rocks, sedimentary rocks and metamorphic rocks. So these are 3 types of rocks और ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्मेशन प्रोसेस, ठीक है, किस तरीके से ये रॉक्स बने उसके बेसिस पे है. We will quickly watch a video. It is a very funny video on 3 types of rocks. So listen to the video very carefully and you will be able to remember the names of 3 types of rocks and understand के कैसे बनते हैं, ठीक है. So listen to it carefully, ठीक है. Igneous, metamorphic, sedimentary, three types of rocks, and that's all 3. Say 3 types of rocks, and that's all 3. Igneous, metamorphic, sedimentary, there's 3 types of rocks, and that's all 3. Say 3 types of rocks, and that's all 3. There's 3 types of rocks in geology, types in geology. If you never met a metamorphic rock, you can't be blamed. Always changing over time, never stays the same. Ingenious how magma flows in puddles up in pools. Igneous or rock is made when molten magma cools. I thought I'd never say it, but I guess it's meant to be. Layered rock on other rocks like sedimentary. Igneous, metamorphic, sedimentary, and that's all 3. Igneous rocks are formed when magma from a volcano cools. Sedimentary rocks form when eroded earth and other materials settle in layers. These layers press down over time to form solid rock. Metamorphic rocks are igneous or sedimentary rocks that have been changed by high temperatures or pressure. For example, the folds in this metamorphic rock were caused by extreme pressure. Sedimentary, and that's all 3 types of rocks in geology, types in geology. Igneous, metamorphic, and sedimentary. There's 3 types of rocks in geology, types in geology. Okay, I see Sumit writing that he didn't understand. I will play the song again. ठीक है, मैं थोड़ा speed कम कर देती हूँ and then try to listen to it again. ठीक है, I'll reduce the speed of the song. ठीक है, वापस से we will. Igneous, metamorphic, sedimentary, there's 3 types of rocks, and that's all 3. Say 3 types of rocks, and that's all 3. Igneous, metamorphic, sedimentary, there's 3 types of rocks, and that's all 3. Say 3 types of rocks, and that's all 3. There's 3 types of rocks in geology, types in geology. If you never met a metamorphic rock, you can't be blamed. Always changing over time, never stays the same. Ingenious how magma flows in puddles up in pools. Igneous or rock is made when molten magma cools. I thought I'd never say it, but I guess it's meant to be. Layered rock on other rocks like sedimentary. Igneous, metamorphic, sedimentary, and that's all 3. Igneous rocks are formed when magma from a volcano cools. Sedimentary rocks form when eroded earth and other materials settle in layers. These layers press down over time to form solid rock. Metamorphic rocks are igneous or sedimentary rocks that have been changed by high temperatures or pressure. For example, the folds in this metamorphic rock were caused by extreme pressure. Sedimentary, and that's all 3 types of rocks in geology, types in geology. Igneous, metamorphic, and sedimentary. There's 3 types of rocks in geology, types in geology. Okay, so we saw this video, and in this video that it was like about 3 types of rocks,
and there were names of 3 types of rocks. I will explain ke how they are formed, so it's okay if you didn't understand from the video, but video mein humne itne baar suna. Let me ask Anas. Anas, what are the 3 types of rocks jo abhi humne video mein sune? Names of the 3 types of rocks, Anas. टीचर वो बहुत बड़े बड़े नेम थे इसलिए समझ नहीं आए. Okay, no problem, Anas. Thank you for telling this to me. Who would tell me, Ayan? Tell us what are the 3 types of rocks. Did you hear the names in the video? Yes, Didi. हाँ. The first is 1 minute. Yes. The first is igneous rock, and the second was second is sedimentary rock, and third is metamorphic rocks. Yes, exactly. Thank you so much, Ayan. So 3 types of rocks कौन से हैं? There, ध्यान से सुनना pronunciation, and you can repeat also. Igneous rocks, igneous, sedimentary rocks, sedimentary, and metamorphic, metamorphic. So these are the 3 types of rocks that are formed, and how they are formed we will study. Okay, before we move forward with these with the process of how these rocks are formed, there are a few basic details that I will quickly tell you. जियोलॉजिस्ट उन साइंटिस्ट को कहा जाता है जो अर्थ के क्रस्ट को स्टडी करते हैं. अर्थ का क्रस्ट बोले तो जो ऊपर वाला पोर्शन है अर्थ का, उसको स्टडी करते हैं. कैसे ये अर्थ का क्रस्ट बना और कैसे ये बदला है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ये सारा जो स्टडी होता है वो कौन से साइंटिस्ट करते हैं? जियोलॉजिस्ट. ठीक है, तो अगर आपको कभी बड़े होके रॉक्स और मिनरल्स के बारे में पढ़ाई करनी है या इसका साइंटिस्ट बनना है, तो आपको सब्जेक्ट कौन सा पढ़ना पड़ेगा? यू हैव टू स्टडी जियोलॉजी सब्जेक्ट. ठीक है, सो इफ यू आर इंटरेस्टेड कि यार ये रॉक्स कैसे बने और क्या क्या है इन रॉक्स में और क्या क्या हो सकता है एक्सेट्रा, देन व्हाट यू कैन स्टडी, द सब्जेक्ट यू कैन स्टडी इज जियोलॉजी, एंड you will be called a geologist. You will be called geologist if you practice this particular occupation in terms of that. ठीक है, now ores एक तरीके के रॉक्स होते हैं जिसमें एलिमेंट्स होते हैं अंदर. ठीक है, तो जो अभी आप लोग बोल रहे थे ना मुझे डायमंड, या फिर आप बोल रहे थे गोल्ड, या फिर आप अलग अलग जो हमको एलिमेंट्स मिलते हैं वो आयरन जैसे हुआ, ये सारे एलिमेंट्स हम रॉक्स से ही मिलते हैं. ठीक है, हमें रॉक्स से मिलते हैं. तो जिन रॉक्स में ये सब एलिमेंट्स पाए जाते हैं उनको ओर्स कहा जाता है. ठीक है, तो आयरन ओर होता है, एल्यूमिनियम का ओर होता है, मैग्नीशियम का ओर होता है. और बेसिकली ऐसे रॉक्स होते हैं जिनमें ये सारे एलिमेंट्स होते हैं. ठीक है, जिनसे इन सारे एलिमेंट्स को निकाला जाता है. ठीक है, सो फॉर एग्जांपल रॉक्स में कंटेन आयरन, लेड, मैग्नीशियम, सिल्वर, गोल्ड, जो हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो ये सब रॉक्स में होते हैं और हमें इन रॉक्स को हम बोलते हैं ओर्स. ठीक है, हमें पता है कि रॉक्स एज टूल्स भी यूज किए जाते हैं. इनको टूल्स की तरह यूज किया जाता है फॉर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स. स्टोन एज में तो जब लोग स्टोन एज में थे बहुत पहले, तब तो हंटिंग वगैरह के लिए भी शार्प करते थे इन स्टोन्स को और उनको ही यूज करते थे एज टूल्स. तब गन्स वगैरह नहीं होती थी, तब इनको यूज किया जाता था. ठीक है, आज भी यूज होते हैं. सो वी नो ऑल ऑफ दिस अबाउट रॉक्स. ठीक है, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड एंड स्टडी कि ये जो 3 टाइप के रॉक्स हैं वो ऐसे कैसे बने और इनको क्यों वो टाइप का डिफाइन किया जाता है. ठीक है, सो वी विल स्टार्ट विथ igneous rocks. ठीक है, let me also annotate so that you are clear. ठीक है, so we will start with igneous rocks. igneous rocks को primary rocks भी कहा जाता है. ठीक है, ये कहाँ से बनते हैं, कैसे बनते हैं ये रॉक्स? ये रॉक्स लावा जो होता है वोल्केनो का, वोल्केनिक इरप्शन हुआ तो जो मैग्मा, जो अर्थ के अंदर मैग्मा था वो लावा के फॉर्म में बाहर आता है. ये जो लावा जब बाहर आता है और बाहर आके ठंडा होता है, व्हेन इट कूल्स डाउन, तो उससे क्या बनता है? पत्थर बनते हैं. उन पत्थरों को कौन सा पत्थर कहा जाता है? इग्नियस रॉक्स कहा जाता है. ठीक है, सो इसमें यही लिखा है, डीप इनसाइड द अर्थ रॉक्स आर मेल्टेड एंड बिकम मैग्मा. ठीक है, तो अब जो ये जो मैग्मा है जो लावा के फॉर्म में बाहर आता है वो भी बेसिकली रॉक्स ही होते हैं.
वो रॉक्स मेल्ट हो जाते हैं अंदर, तो उसको मैग्मा कहा जाता है। जब ये मैग्मा वोल्केनो से बाहर आता है, इट इज कॉल्ड लावा। ठीक है, तो ये चीज बहुत अच्छे से याद रखना। अंदर जब तक वो अर्थ के अंदर है, नीचे है, वोल्केनो के नीचे है, तो वो मैग्मा है। ठीक है, जब वो वोल्केनिक इरप्शन में बाहर आता है तो उसको हम लावा कहते हैं। ठीक है, नाउ इफ द लावा कूल्स क्विकली, अगर ये जो लावा है वो जल्दी से ठंडा हो जाता है, इट विल मेक अ स्मूथ एंड शाइनी रॉक। ठीक है, तो आपने देखा कुछ पत्थर जो होते हैं वो बहुत स्मूथ होते हैं, ऐसे रफ नहीं होते, बहुत ही स्मूथ होते हैं, बहुत शाइन करते हैं। तो अगर कोई पत्थर स्मूथ और शाइनी है तो उसका मतलब जो लावा आया था वो जल्दी से ठंडा हो गया, लावा बाहर निकल के जल्दी से ठंडा हो गया, तो जो रॉक बना वो स्मूथ और शाइनी बना। पर अगर ये जो लावा है ये बहुत टाइम में धीरे धीरे आराम से ठंडा होता है, तो जो रॉक होता है उसमें छोटे छोटे होल्स हो जाते हैं और गैस बबल्स रह जाते हैं। ठीक है, तो दो टाइप के इग्नियस रॉक्स हमको दिखते हैं, एक बहुत स्मूथ होंगे और शाइनी होंगे, वो इसलिए क्योंकि जो लावा आया था वो जल्दी से ठंडा हो गया था। एक होते हैं जिसमें बहुत पोर्स होंगे और गैस बबल्स होंगे, वो जो रॉक्स होते हैं वो इसीलिए ऐसे होते हैं क्योंकि लावा जो है वो आराम से धीरे धीरे ठंडा हुआ। ठीक है, तो वो जितने भी रॉक्स लावा से बने हैं, वोल्केनिक इरप्शन से बनते हैं, वो सारे रॉक्स इग्नियस रॉक्स कहलाते हैं या प्राइमरी रॉक्स कहलाते हैं। ठीक है, नाउ टेल मी कि ये वाले जो इग्नियस रॉक्स होते हैं वो जनरली कहाँ पाए जाते होंगे? Where will you find these igneous rocks the most? ठीक है, यस कार्तिक, where will we find igneous rocks? कहाँ मिलते हैं सबसे ज्यादा? Just think of it कि कहाँ सबसे ज्यादा igneous rocks मिल सकते हैं, and then you can give the answer. कार्तिक, you. Yes जी, कहाँ मिलते होंगे ये igneous rocks सबसे ज्यादा? lava and volcano eruption, magma. राइट, एग्जैक्टली, जहाँ पे भी वोल्केनोज होते होंगे, जहाँ पे भी ये या अभी हैं वोल्केनोज या फिर जहाँ पहले वोल्केनोज हुआ करते थे और अब नहीं है, वहां पे जनरली इग्नियस रॉक्स काफी पाए जाते होंगे। ठीक है, तो ये जो प्लेट्यूज होते हैं या माउंटेन्स होते हैं, जो हो सकता है पहले कभी वोल्केनोज थे, तो उनके आसपास भी काफी इग्नियस रॉक्स पाए जाते हैं। इनको प्राइमरी रॉक्स क्यों कहा जाता होगा कार्तिक? कैन यू गेस प्राइमरी रॉक्स क्यों कहते होंगे इनको? Primary rocks because वो shine करते होंगे। ओके, सो बेसिकली इनको प्राइमरी रॉक्स इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप देख रहे हो तो लावा बाहर आता है और सबसे पहले लावा ठंडा होके ये पत्थर बनते हैं। ठीक है, सो दिस आर द बेसिकली बेसिक स्टोन्स कहला गए जो डायरेक्टली लावा से बन जाते हैं, इसीलिए इनको प्राइमरी रॉक्स भी कहा जाता है। ठीक है, सो दीज आर इग्नियस रॉक्स। ऑलवेज रिमेम्बर, इग्नियस रॉक्स जो है वो लावा जो होता है वोल्केनो के, उससे बनते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट टाइप ऑफ रॉक्स दैट जो हैं वो होते हैं, उनको कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। ठीक है, दूसरे टाइप के रॉक्स जो हैं उनको कहते हैं सेडिमेंटरी रॉक्स। नाउ सेडिमेंटरी रॉक्स जो होते हैं ये जनरली सैंड, शेल्स जो आपको समुद्र के पास शेल्स मिलते हैं वो, पेबल्स एंड अदर मटेरियल्स जो होते हैं उनसे बनते हैं। सेडिमेंटरी का मतलब होता है सेडिमेंट्स या लेयर्स बनना। ये जो लेयर्स आप देख रहे हो, ये रॉक जो है उसमें लेयर्स है बहुत सारे, सो ये सब सेडिमेंट्स होते हैं, इनको सेडिमेंट्स कहते हैं। इसीलिए ये जो रॉक होता है ये सेडिमेंटरी रॉक कहा जाता है। क्या होता है, जनरली इरोजन हुआ या फिर नदी से बह के कुछ गया और सब इकट्ठा हुआ एक जगह, और ऐसे सोचो कि सैंड आई, बहुत पेबल्स रखे थे वहां, ऑलरेडी सैंड है वहां पे, और फॉसिल्स हो गए या फिर बहुत सारी चीजें हैं, वो मिलके ओवर अ पीरियड ऑफ अ लॉट मेनी इयर्स वो सब मिलके एक साथ जुड़ गए। ठीक है, तो वो जो पत्थर होता है उसको सेडिमेंटरी रॉक कहते हैं। ठीक है, अब सेडिमेंटरी रॉक में हाँ इग्नियस रॉक्स भी हो सकते हैं, बहुत सारे इग्नियस रॉक्स हैं, इग्नियस रॉक्स के साथ और बहुत सारी चीजें मिल गई और बहुत सारे टाइम पे एक साथ वहां रही, तो वो टुगेदर एक साथ मिलके वो सेडिमेंटरी रॉक कहलाता है। ठीक है, नाउ स्लोली द सेडिमेंट्स गैदर अप इन लेयर, बहुत धीरे धीरे, बहुत टाइम लगता है ये रॉक्स बनने के लिए। सो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम स्लोली काफी सारे सेडिमेंट्स एक साथ मिलते हैं और वो लेयर्स की तरह बन जाते हैं, और ये सब इकट्ठा होके बहुत टाइम बाद रॉक्स बन जाते हैं।
ठीक है। इन रॉक्स में फॉसिल्स भी बहुत मिलते हैं। फॉसिल्स क्या होते हैं? डेड रिमेन्स जो होते हैं, हमने पढ़ा एनिमल्स के या इंसेक्ट्स के या प्लांट्स के, जो प्लांट्स हैं वो सब वहीं पे सेडिमेंट इकट्ठे हो गए, तो फॉसिल्स भी काफी सारे मिलते हैं इस रॉक में। तो ये रॉक किसी एक चीज से नहीं बना होता है, बहुत सारी चीजों से बना होता है, सब इकट्ठे मिलते हैं और बहुत सारे टाइम में एक साथ मिलके रह जाते हैं, तो उसको सेडिमेंटरी रॉक कहते हैं। ठीक है, तो इन रॉक्स में फॉसिल्स पाए जाते हैं। ऑल्सो रिमेंबर, इग्नियस रॉक्स में जनरली फॉसिल्स नहीं होते क्योंकि ये डायरेक्टली लावा से बनते हैं, तो इसमें कोई डेड रिमेन का वो नहीं कहलाएगा। तो अगर उसमें फॉसिल है तो वो इग्नियस रॉक है ही नहीं। ठीक है, फॉसिल जनरली कहाँ पाए जाते हैं? सेडिमेंटरी रॉक्स में पाए जाते हैं। ठीक है, ओके नीरव, यू कैन लीव, बट प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग टू कंप्लीट जो हमने आज का टॉपिक पढ़ा है। प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग ऑफ द क्लास। ठीक है, ओके। सो सेडिमेंटरी रॉक्स, इससे याद रखना कि उन रॉक्स में लेयर्स होती हैं और बहुत सारी अलग अलग चीजों से बनते हैं ये रॉक्स। ठीक है, तो ये सेकेंड टाइप के रॉक्स हो गए। थर्ड टाइप का जो रॉक है, गिव मी अ मोमेंट, वो है मेटामॉर्फिक रॉक्स। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक्स। मेटामॉर्फिक रॉक्स कुछ नहीं होते, दीज आर या तो इग्नियस रॉक होगा या फिर सेडिमेंटरी रॉक होगा, जो बहुत टाइम में बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ने की वजह से बनते हैं। ठीक है, वो मेटामॉर्फिक रॉक्स कहलाते हैं। These are made beneath the surface of the earth. ये जनरली अर्थ की सरफेस के नीचे बनते हैं। ओके, नाउ इट हैज रिबन लाइक लेयर्स caused by the heat. ठीक है, क्योंकि ये जमीन के अंदर बनते हैं तो बहुत हीट, बहुत गर्मी की वजह से रिबन लाइक ऐसे लेयर्स होते हैं इसके। ठीक है, इन रॉक्स में जनरली मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर जो शाइनी क्रिस्टल्स होते हैं, जो बहुत शाइनी, जो जेमस्टोन्स वगैरह होते हैं, वो सब जनरली इन रॉक्स के अंदर पाए जाते हैं क्योंकि बहुत हीट और प्रेशर की वजह से ये अर्थ के नीचे बनते हैं। ठीक है, सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ रॉक। So metamorphic, sedimentary and igneous, these are the three types of rocks and this is how these rocks are made. ठीक है, Mau, please do watch the recording of the class. You can leave. ठीक है, okay, great. Now this is basically a rock cycle. एक पत्थर से दूसरा पत्थर बनता है, दूसरा पत्थर वापस से पहला वाला पत्थर बन जाता है। दिस इज द बेसिक साइकिल। सबसे पहले इग्नियस रॉक बनता है। इग्नियस रॉक कैसे बनता है? लावा से बनता है। लावा ठंडा होता है तो वो इग्नियस रॉक बन जाता है। नाउ ऐसा नहीं है कि लावा जब बाहर आता है तो आसपास कोई फॉसिल नहीं होगा या आसपास कोई दूसरी चीज नहीं होगी। जो लावा जनरली सिर्फ लावा ही क्रिस्टल हो जाता है, वो तो इग्नियस रॉक बन जाता है। पर अगर जब वो ठंडा हो रहा होता है उसमें दूसरी चीजें मिल जाती हैं, सपोज सैंड और फॉसिल और बहुत सारी चीजें अगर मिल जाती हैं और वो पत्थर बनता है तो वो सेडिमेंटरी रॉक बन जाता है। नाउ ये जो सेडिमेंटरी रॉक या इग्नियस रॉक होते हैं, ये अगर नीचे अर्थ के नीचे ही है, बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ है, बहुत ज्यादा हीट और बहुत ज्यादा प्रेशर अगर उस पर लग रहा है तो यही रॉक्स क्या बन जाते हैं? बहुत सालों में मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं। ठीक है, ये जो मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं इनमें हमको जनरली जो स्टोन्स वगैरह होते हैं, जो शाइनी स्टोन्स और ये सारी चीजें मिलती हैं, वो सब हमको मेटामॉर्फिक रॉक्स में ही मिलती हैं। और फिर बहुत सारे टाइम के बाद यही मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं, क्योंकि ये अर्थ सरफेस के नीचे होते हैं, वहां पे टेम्परेचर की वजह से मेल्ट हो जाते हैं, तो यही मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं वो मैग्मा बन जाते हैं और फिर वापस से यही रॉक्स लावा के फॉर्म में बाहर आ जाते हैं। सो एक बहुत लंबा साइकिल चलता है, ये कोई 10 साल 15 साल 20 साल नहीं, लाइक मिलियंस ऑफ ईयर्स का ये साइकिल होता है। तो यही रॉक्स एक दूसरे फॉर्म में चेंज होते जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली व्हाट वाटर रॉक साइकिल इज। ठीक है, अगर आप ये इमेज केयरफुली देख रहे होंगे तो ये एक वोल्केनो है, ये नीचे अर्थ के सरफेस में है। सो यही बाहर आता है, देन देयर इज इरोजन, देयर इज ट्रांसपोर्टेशन, यही रॉक आगे चले जाते हैं, सेडिमेंट्स बन जाते हैं तो वो सेडिमेंटरी रॉक होते हैं। यही सेडिमेंटरी रॉक पे बहुत टेम्परेचर प्रेशर लगता है तो वो मेटामॉर्फिक रॉक बन जाते हैं। यही मेटामॉर्फिक रॉक जब मेल्ट हो जाते हैं और बाहर आते हैं तो वो इग्नियस रॉक बन जाते हैं। सो दिस इज बेसिकली दी रॉक साइकिल। ठीक है, ओके, so I will move further and quickly give you a quick revision. 3 types of rocks: igneous, sedimentary, metamorphic. Igneous rock बनते हैं जब लावा या कूल हो जाता है, ठीक है, वो igneous rock होता है।
सेडिमेंटरी रॉक बनते हैं। सतप्रीत, कार्तिक, प्लीज वेट, ठीक है। सेडिमेंटरी रॉक जो बनते हैं वो जब मटेरियल, अलग अलग मटेरियल जो अर्थ क्रस्ट का है वो डिपॉजिट होता जाता है और हार्ड हो जाता है इन वाटर, तो वो सेडिमेंटरी रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। मेटामॉर्फिक रॉक जनरली इग्नियस और सेडिमेंटरी रॉक होते हैं, पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से वो अपना चेंज करते हैं प्रॉपर्टीज, तो वो मेटामॉर्फिक रॉक्स बन जाते हैं, ठीक है। So these are the 3 different types of rocks and this is how these are formed. हम नेक्स्ट क्लास में इन्हीं रॉक्स के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे और we'll find out कि कौन से एग्जांपल्स हम देखेंगे इन्हीं रॉक्स के. We will do that in next class. ठीक है? So as of now, if we see what we have already covered in the class today is we have covered what are different types of, what are rocks and what are different 3 different types of rocks और कैसे वो form होते हैं. This is what we have covered in the class today. Now give me from 0 to 5, tell me how clear are we? Do we understand? If we do not understand, give me a 0. If you understood somehow, give me a 3. And if you got all of what we studied today, give me a 5. ठीक है? इनके बीच में हो तो भी दे सकते हो. Okay. So that I know where we are. And in the tomorrow's class, when we discuss these rocks in details, I will explain again. तो आपको और clearly समझ में आ जाएगा. Great. तुम लोग सब 4 और 5 तो ऐसे देते हो ना जैसे मैं एकदम प्रो है, लेकिन अभी मैं टेस्ट लूंगी ना तो फिर सब गड़बड़ करते हैं. देन टेस्ट लेने में पता नहीं क्या गड़बड़ करते हो. ओके, नाउ स्नेहा, आई एम सो कंफ्यूज, ये 0 है कि 3 है? प्लीज लेट मी नो. ओके, ठीक है, ठीक है. ओके, wherever you are, let us just quickly do a quiz. I'll ask you 4 to 5 questions. Whoever answers these questions will get 10 points on class dojo for each question. ठीक है? So be very quick. ठीक है? And yes, just also remember na, everybody will type on the chat box. Let's not do 10 for those who tell. Everybody type on the chat box, and if your answer is correct, then you will get points on class dojo. ठीक है? सभी chat box पे type करेंगे. I will ask answer later after सबने type कर दिया होगा तो मैं एक जने से answer पूछ लूंगी. ठीक है? So the first question is, read it and type your answer on the chat box privately to me. ठीक है? मुझे पता चलेगा किसने किया है और किसने नहीं. Which one of the following is not one of the 3 types of rocks? इनमें से कौन सा is not a type of rock? Sedimentary, lava, metamorphic, igneous. Type on the chat box. Okay. Thank you, Sumit, Vinayak, Ankita, Ayan, Prem, Satpreet, Krishna, Shravani. Okay. Minakshi, Hari Vitthal, Sneha, Piyush, Rohan. Okay. Ashwini. What about others? सबको reply करना है. Okay. Harshada, नीरव, प्राची, रिया, सतप्रीत, सुफियान, विलास, सबको रिप्लाई करना है. थैंक यू प्राची. जोया, you also have to reply. Yash, Riya, what are you typing? Read the question and type the answer. Okay. ठीक है. Mohammed, you tell me what is the answer to this question. Nobody is leaving the class, okay? You will not get attendance if you are leaving the class without informing me. Mohammed, unmute yourself and tell me what is the answer to this question. Thank you, Vilas, for typing on the chat box. हाँ जी. What दीदी? Question का answer बताओ बच्चे. क्वेश्चन पढ़ा आपने? कौन से क्वेश्चन का मतलब क्या बोल रही थी मैं क्लास में? हाँ, और स्क्रीन पे क्या दिख रहा है क्वेश्चन? उस क्वेश्चन का आंसर आई वांट. यस सतप्रीत. रीड द क्वेश्चन एंड आंसर ऑन द चैट बॉक्स. मोहम्मद.
फैजान, Yes. Which one? यू रीड इट, खुद से पढ़ो मोहम्मद एंड आंसर करो मुझे चैट बॉक्स पे, ठीक है? फैजान, क्विकली टेल मी द आंसर टू दिस क्वेश्चन. व्हाट इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन? Guys, we'll do it quickly, ठीक है? We have 5-6 questions, so जल्दी जल्दी आंसर दो. Yes, फैजान. Yes, Didi. What is the answer to this question, Faizan? What do you think is the answer? You tell me. Thank you, Pallavi. Yes, Shravani, I can see you want to answer. Faizan, just read it and जो भी आपको समझ में आया, based on that, quickly tell us what is the answer. What do you think is the answer? सुन रहे थे आप क्लास में फैजान? Yes. Please unmute yourself. Yes, Didi. हाँ जी, तो बताओ जल्दी से मुझे. The lava. Correct. ठीक है, lava is not one of the 3 types of stones. Rohan, Hari Vittal, please see. The answer to this question is lava. 3 types के rocks होते हैं. Only 3. Question में भी लिखा है one of the 3 types of rocks. ठीक है, which of this is not a type of rock? 3 type के rocks होते हैं, igneous, sedimentary and metamorphic. So answer to this question is lava. Lava is not a type of rock. Okay? Thank you so much, Faizan. Okay, we will move to the next question. Magma is lava that has been ejected from beneath the earth crust through a volcano. Is this statement true or is this statement false? Okay, magma is lava that has been ejected from beneath the earth crust through a volcano. Is it true or is it false? Thank you, Mohammed, for starting us off. Rest of you, please type on the chat box. I will ask after people have responded on the chat box. Okay? Okay. Thank you, Satpreet, Krishna, Ayan, Neerab, Prem, Shravani, Meenakshi, सभी टाइप करेंगे चैट बॉक्स पे. पल्लवी, हरि विठल, मीनाक्षी, फैजान. Okay. Waiting for some more people to respond. Ashwini, thank you. Sufyan, I'm waiting. You haven't responded for the last question also. Kaveri, आपका भी नहीं आया था. Thank you, Vilas, Neha, Zoya and Maheen. Okay, thank you, Sainath. Yash, haven't got your response. ठीक है. Okay. Shravani, tell us what is the answer to this question. Wait. Yes, Shravani. Sorry. True answer is True. Why it is true? Shravani, क्या सही है इस आंसर में? What do you understand from the question? because दीदी हिंदी में बोल सकती हो? हाँ बोलो. Because जो लावा है ना वो और पे आया था और उसके वजह से वो हम भी. Okay, I'll explain. Thank you so much, Shravani. The answer to this question is true. ठीक है, मैग्मा ही लावा बन के वोल्केनो से बाहर आता है. ठीक है, जब वो अंदर होता है अर्थ के अंदर तो वो मैग्मा कहलाता है, मोल्टन रॉक्स होते हैं ये. जब ये बाहर आ जाता है वोल्केनो से तो उसको लावा कहते हैं. So Zoya and a few more people who have said false to the statement. I think Pallavi and Vilas also said a false. Guys, this is a true statement. जब वो नीचे होता है मोल्टन स्टेट में तो वो मैग्मा कहलाता है. जब वो वोल्केनो से बाहर आता है तो उसको लावा कहते हैं. ठीक है, the statement is true. We will quickly move to the next
3 questions guys. थोड़ा 5 मिनट extend होगा, but we'll quickly complete this. ठीक है? Neerab, quickly read the question. Rest of you also read the question and you can start typing the response on the chat box. ठीक है? Yes, Neerab. Question read करो हमारे लिए please. Neerab. Okay, Vinayak, you read the question quickly. The Godavari River carries sediments to the ocean. Over time, the sediments are compressed as more sediments are deposited on top of them. Which type of rock will be formed? Okay, so the Godavari river, हमें पता है ना गोदावरी रिवर है, it goes to the ocean. ठीक है? और जब वो बहती है तो अपने साथ साथ काफी sediments लेकर जाती है. Over time, बहुत सारे time में the sediments are compressed, सारे sediments एकदम compress हो जाते हैं and they are deposit, एक के ऊपर एक deposit हो जाते हैं. ठीक है? तो ये कौन से टाइप का रॉक फॉर्म करेंगे? A sedimentary, B metamorphic, C igneous. ठीक है? Thank you Satpreet, Krishna, Zoya, Vilas, Shravani. The Godavari River Yes, Vinayak, what do you think is the answer to this question? Yes, Vinayak. Didi, I think the A1. Okay, Vinayak says A sedimentary is the answer to the question. Prem, what do you think is the answer to this question? Sedimentary A Didi. Okay. Last, I will take response from Harivittal. What do you think is the answer to this question? A. Yes, exactly. हम जब भी हम आराम से पढ़ रहे हैं कि रिवर के साथ सेडिमेंट्स जा रहे हैं, ये सेडिमेंट्स एक के ऊपर एक लेयर बन जाएंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये एक रॉक बन जाएंगे. तो अगर लेयर्स बन रही है, सेडिमेंट्स एक कैरी होके जा रहे हैं और लेयर्स बन रही हैं, तो दैट रॉक विल बी अ सेडिमेंटरी रॉक. ऑलवेज रिमेंबर इग्नियस रॉक, जो काफी लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है, इग्नियस रॉक हमेशा लावा से बनता है, वोल्केनिक इरप्शन के लावा से बनता है इग्नियस रॉक. सेडिमेंटरी रॉक, सेडिमेंट्स एक के ऊपर एक जम जाते हैं, लेयर्स बनती है, उससे बनता है. ठीक है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. Pallavi, read the question quickly. Yes, Didi. Bana Island is an island located in Ahmedabad Sea. It is the only confirmed active volcano in the South Asia. It is erupting and lava is ejected from the volcano vent. The lava solid fixed up to form all types of rocks. Okay, now this is just an information I am giving you. Barren Island एक island है जो अंडमान सी में, अंडमान एंड निकोबार, if you have heard, अंडमान सी में Barren Island करके एक island है, वहाँ पे एक volcano है. This is the only active volcano in Indian subcontinent. ठीक है? एक लौता active volcano है जहाँ से lava erupt होता है, पर ये भी last time कुछ 1900 कभी erupt हुआ था, अभी नहीं हुआ, बहुत time से erupt नहीं हुआ, but it is an active volcano. ठीक है? Now suppose इस volcano से lava बाहर निकलता है, it is erupting and lava is ejected from the volcano vent. ये lava solidify हो जाता है. कौन सा type का rock बनाएगा ये lava? What can be the response? Please type on the chat box. Okay. Thank you, Ayan, Meenakshi, Krishna, Sumit. What about others? Yash, I'm waiting for your response. आपने पिछले 2 question का भी answer नहीं दिया था. Zoya, Mohammed, Sufyan. Thank you, Vinayak, Ankita. Meenakshi,
Or what do you think is the answer to the question? The answer is igneous rock. Okay, exactly correct. Why it is igneous rock? Because it become with lava. Yes, exactly. ठीक है, तो सभी ने एक्चुअली सही आंसर दिया था इसका. Whenever lava solidify होता है तो it forms a igneous rock. It is a primary rock. Okay, thank you so much, Meenakshi. The last question for today. In Thar Desert, a sudden rainstorm washes sand and sediments into Luni River. ठीक है, थार डेजर्ट में विच इज इन राजस्थान गुजरात, हमने ये पढ़ा है. देयर इज अ लूनी रिवर. ठीक है, तो एक वहां पे बहुत सडन बारिश होती है और जितने भी सेडिमेंट्स है वो सारे लूनी रिवर में चले जाते हैं, विच इवेंचुअली डिपॉजिट द सेडिमेंट इनटू ओशन. ठीक है, और फिर ये सारे सेडिमेंट्स को ओशन में ले जाती है ये रिवर. नाउ दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इरोजन एंड ट्रांसपोर्ट, deposition या weathering. I know this can be a bit off track question. ये शायद आपने आज हमने क्लास में नहीं डिस्कस किया, but it is a basic science question. What is this process called? Who can give me the response to this question? Thank you, Ashwini, Sumit, Zoya, Ayan. Okay, great. Okay, there is a bit confusion क्योंकि I can understand आपने नहीं पढ़ा है. That's okay. Ayan, why do you think this process is called disposition? Can you tell us? दीदी आई थिंक बिकॉज सब चीजें एक जगह डिपॉजिट होते इसलिए. Okay. Thank you so much, Ayan. Basically concept यही है. This process is basically disposition. सब कुछ displace होके अपनी जगह से it is going and settling into one place because river is carrying it and leaving in the ocean. तो ये process को disposition कहते हैं and that is the answer. Thank you so much, Ayan. That ends the quiz for today. What is your post work is I'll send you the video. ठीक है, एक और वीडियो भेजूंगी जैसे हमने देखा था ना वैसे ही. There is one more video. We'll watch that video and read the chapter. Read this chapter from the book. Chapter number 7 geography book में होगा. I will also send across a worksheet जिसमें इन तीनों rocks के बारे में बताया गया है and there is a very fun match the column करके. It is very fun. I will send it across on the group. तो वो देखना and try to complete it. हम कल की क्लास में we will discuss it. ठीक है? I know we have exceeded our time, so I am not taking the attendance right now on the Dojo app, but I will mark your attendance based on whoever was there in the class at this point of time. ठीक है, तो जो अभी present है मैं सबकी attendance mark कर दूंगी on Dojo. ठीक है, those who have questions can stay back. If not, you can leave the class. Thank you so much for joining. Bye bye.